Chapter 9 Elements of Group 13, 14, 15th. Can you tell if the valence shell electronic configurations of an element is 3s2 3p1 in which block of periodic table is it placed? क्या आप बता सकते हैं एलिमेंट जिसका लास्ट शेल में मतलब वैलेंस शेल में 3s2 3p1 है वो पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में लोकेटेड है? Introduction. You have learned in chapter 7 that in the p block element the differentiating electrons, the last filling electron, enters the outermost p orbitals. आपने चैप्टर 7 में सीखा p ब्लॉक एलिमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से फिल किया जाता है, आउटरमोस्ट p ऑर्बिटल में एंटर किया जाता है. You also know that maximum 6 electron can be accommodated in p shell or 3p orbitals. आप जानते हैं कि जो भी p ब्लॉक एलिमेंट है वहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉन जब p सबशेल में जाता है तो p सबशेल का कैपेसिटी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन के लिए है. This give rise to 6 groups. इसकी वजह से 6 ग्रुप फॉर्म हो गए. वो है 13, 14, 15, 16, 17, 18. Group 13 to 18 in the block. The p block element show greater variation in the property than s block. p block element का property जो है काफ़ी अलग है compared to s block से, which you learn in the previous chapter, जो आपने previous chapter में सीखा. In this chapter, you are going to study the element of group 13, 14, 15 in some details. आप इस चैप्टर में ग्रुप 13, 14, 15 एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. The element boron 5b, aluminium 13, aluminium, gallium 31, indium 49, and thallium 81 constitute the group 13 called the boron family. बोरॉन फैमिली इस ग्रुप में बोरॉन एटॉमी नंबर 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49, थैलियम 81 ये सभी एलिमेंट जो है बोरॉन फैमिली में प्रेजेंट है. द एलिमेंट कार्बन 6 कार्बन, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50. तो कार्बन 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, lead 82 form group 14 called carbon family. तो कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो है कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड ये सब एलिमेंट जो है कार्बन फैमिली का फैमिली है. The element nitrogen, phosphor, P, arsenic, antimony, bismuth belong to group 15. Periodic tables for nitrogen family. Nitrogen family, nitrogen atomic number 7, phosphor atomic number 15, arsenic atomic number 33, antimony
atomic number 51, bismuth atomic number 83, नाइट्रोजन फैमिली में बिलोंग्ड है। Electronic configurations of element of group 13, 14, 15. Group 13, 14, 15 in element का electronic configurations. The general outer electronic configurations of group 30 element is ns2np1. Group 30 element का लास्ट शेल जो है ns2np1 है। Those of the group 40 element is ns2np2. Group 40 में electronic configuration ns2np2 है, while the group 50 element are shown as ns2np3 है। Group 15 में जो electronic configuration है वो ns2np3 है। This electronic configuration differ from their nearest inert gases by 3 or 4 electrons. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका इनर्ट गैस जो है इनके बीच में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। These elements do not occur in free monoatomic states and found as compound with other element. ये एलिमेंट जो है फ्री मोनोएटॉमिक स्टेट्स में नहीं मिलता, ये एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में मिलता है। और polyatomic molecules such as nitrogen, tetraphosphor, 60 carbon or polyatomic covalent array such as graphite diamond. तो यहाँ पे एलिमेंट जो है फ्री मोनोएटॉमिक स्टेट में नहीं मिलता है, कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, या फिर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि नाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन है, टेट्राफॉस्फर है, 60 कार्बन है, या फिर polyatomic covalent array जैसे कि graphite diamonds. Table 9.1 show the condensed electronic configuration of the element of group 13 and group 14 and group 15. तो group 13, group 14, group 15 जो है ये elements जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है टेबल पॉइंट 1 में जो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट किया है। So condensed electronic configuration of element of group 13, 14, 15. Group 13 family element boron 5, aluminum 13, gallium 31, indium 49, thallium 81. Condensed electronic configurations helium 2s2 2p1 13, aluminum neon 32, neon 3s2 3p1, gallium 31, argon 3d10 4s2 4p1, 49 indium is krypton 4d10 5s2 5p1, thallium 81 is xenon 4f14 5d10 6s2 6p1. Carbon 6 condensed electronic configuration helium 2s2 2p2, silicon 40, neon 3s2 3p2, germanium 32 is argon 3d10 4s2 4p2, 50 tin is krypton 3d10 5s2 5p2, then lead 82 is xenon 4f14 5d10 6s2 6p2. then next है ग्रुप 15 का नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन 7 कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज helium 2s2 2p3, then phosphor 15 is neon 3s2 3p3, 33 arsenic is argon 3d10 4s2 4p3, 51 antimony is krypton 4d10 5s2 5p3,
83 bismuth is on OF14 5D10 6S2 6B3. Group problem 9.1. Atomic number of the group 13 element are in the order boron, smaller than aluminium, smaller than gallium, smaller than indium, smaller than thallium. Arrange this element in increasing order of ionic radii of M3 plus. Group 13 element का atomic number boron smaller than aluminium, smaller than gallium, smaller than indium, smaller than thallium अरेंज होता है ionic radii का increasing order के हिसाब से. Given element are in an increasing order of atomic number. एल्यूमिनियम जो है हमेशा एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से होता है. As we go down the group 13, their general outer electronic configuration is ns2 np1. जैसे जैसे ग्रुप 13 के नीचे जाता है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रहता है 3s2 ns2 np1. M3 plus is formed by removal of 3 electron from outermost shell n. तो M3 plus जो है फॉर्म होता है जब 3 इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में से निकालते हैं. यदि M3 plus in the M3 plus n minus 1 shell become the outermost. M3 plus में the outermost shell जो हो n minus 1 shell बन जाता है. Size of the added n minus 1 shell increase down the group. तो यहाँ पे n minus 1 जो शेल ऐड करता है वो ग्रुप में नीचे नीचे बहुत बड़ा साइज का हो जाता है. Therefore, the ionic radii M3 plus also increase down the group as follow. तो M3 plus का भी ionic radii जो है वो जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे बढ़ जाता है. तो B3 plus का आयनिक साइज ज़्यादा है. नहीं, B3 plus का B3 plus का साइज कम है कंपेयर टू एल्यूमिनियम 3 प्लस से. एल्यूमिनियम 3 प्लस का साइज कम है. आयनिक रेडियाई कम है गैलियम 3 प्लस से. गैलियम 3 प्लस का आयनिक रेडियाई कम है इंडियम 3 प्लस से. इंडियम 3 प्लस का आयनिक रेडियाई कम है थैलियम 3 प्लस से. सो थैलियम 3 प्लस का आयनिक रेडियाई ज़्यादा इंडियम 3 प्लस से. इंडियम 3 प्लस का आयनिक रेडियाई ज़्यादा गैलियम 3 प्लस से. गैलियम 3 प्लस का आयनिक रेडियाई ज़्यादा एल्यूमिनियम 3 प्लस से. एल्यूमिनियम 3 प्लस का आयनिक रेडियाई ज़्यादा बोरॉन 3 प्लस से. Problem 9.2. Why the atomic radius of gallium is less than that of aluminium? गैलियम का एटॉमिक रेडियाई जो है एल्यूमिनियम से कम क्यों है? Atomic radius increase down the group due to added new shells. एटॉमिक रेडियस जो है उसका साइज बढ़ते रहता है जैसे जैसे नीचे नीचे ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में नीचे नीचे जाते हैं तो शेल नया ऐड होता है. Aluminium does not have the electron. एल्यूमिनियम के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है. As we go from aluminium down to gallium, the nuclear charge increased by 18 unit. जैसे जैसे एल्यूमिनियम से लेकर गैलियम तक जाते हैं तब न्यूक्लियर चार्ज जो है 18 यूनिट तक बढ़ जाता है. Out of the 18 electron added, 10 electron are in the inner 3D cell. तो 80 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर 3D सबशेल में चला जाता है. डी इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट. डी जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है. Therefore, the effect of attraction due to increased nuclear charge is experienced.
prominently by outer electron of gallium, and thus its atomic radius becomes smaller than that of aluminium. अट्रैक्शन का इफेक्ट जो होता है वो कैसे होता है न्यूक्लियर चार्ज बनने की वजह से, जो सिर्फ गैलियम का आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, और एटॉमिक रेडियस जो है छोटा हो जाता है गैलियम का कंपेयर टू एल्यूमिनियम से. Trend in atomic and physical properties of element of group 13, 14, 15. तो यहाँ पर एलिमेंट का एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड क्या है. The element of group 13 show wide variation in property. ग्रुप 13 का एलिमेंट जो है प्रॉपर्टी में वेरिएशन दिखाता है. इन ग्रुप 13 बोरॉन इज मेटलॉइड. ग्रुप 13 में बोरॉन मेटलॉइड है. It is glossy and hard solid like metal, but a poor electrical conductivity like non-metals. बोरॉन जो है काफ़ी ग्लॉसी है, चमकता रहता है, हार्ड है, सॉलिड मेटल है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो बहुत पुअर है जैसे नॉन मेटल्स का है, लेकिन है मेटल. द अदर एलिमेंट इन दिस ग्रुप्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल. बाकी के सारे एलिमेंट जो इस ग्रुप में हो काफ़ी रिएक्टिव है. Aluminium is the third most abundant element in the earth crust. पूरे अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम जो है थर्ड मोस्ट मेजर एलिमेंट अर्थ में से मिलता है. Some physical and atomic property of group 30 elements are given as table to 9.2. कुछ फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी जो रहता है ग्रुप 30 एलिमेंट का वो टेबल 9.2 में दिया है. एल्यूमिनियम बोरॉन्स यहाँ पर एटॉमिक नंबर 5 है. एटॉमिक मास 10.81 है. एटॉमिक रेडियस 88 है. आयनिक रेडियस जो है 27 पिकोमीटर है. यहाँ पे 3 आयनेशन एंथैल्पी होते हैं 1, 2, 3. ठीक है. फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है. डेंसिटी 2.35 है. मेल्टिंग पॉइंट 24.53 है. और बॉइलिंग पॉइंट जो है 3923 है. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है. एटॉमिक मास 26.9 है. फिर एटॉमिक मास 143 पिकोमीटर है. आयनिक रेडियस 53.5 पिकोमीटर है. आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट 577 किलो जूल पर मोल है. सेकेंड जो है 1816 किलो जूल पर मोल है. थर्ड जो है 2744 किलो जूल पर मोल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है. डेंसिटी 2.070 है. मेल्टिंग पॉइंट 933 है. बॉइलिंग पॉइंट 2750 है. एलिमेंट गैलियम है. एटॉमिक नंबर 31 है. एटॉमिक मास 69.72 है. एटॉमिक मास 135 है. आयनिक रेडियस 62 है. आयनाइजेशन एंथैल्पी 579 है किलो जूल पर मोल है. आयनाइजेशन एंथैल्पी 1979 किलो जूल पर मोल है. आयनाइजेशन एंथैल्पी 2962 किलो जूल पर मोल है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6 है. डेंसिटी जो है 5.90 है ग्राम पर cm3. मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन है. बॉइलिंग पॉइंट इज 2676 केल्विन है. इंडियम जो है एटॉमिक नंबर 49 है. एटॉमिक मास 114.82 है. एटॉमिक रेडियस 167 पिकोमीटर है. आयनिक रेडियस 80 पिकोमीटर है. आयनाइजेशन एंथैल्पी
588 kilojoule per mole. Second ionization enthalpy 1820 kilojoule per mole. Third ionization enthalpy 2704 kilojoule per mole. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंडियम का 1.7 है. डेंसिटी 7.31 ग्राम पर cm3. मेल्टिंग पॉइंट जो इंडियम का वो है 430 केल्विन. बॉइलिंग पॉइंट है 2353 केल्विन. थैलियम एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम 81. एटॉमिक मास 204.38 है. एटॉमिक रेडियस 170 है. आयोनिक रेडियस 88.5 है. आयनिक एंथैल्पी 259 है. आयनिक एंथैल्पी 197 है. आयनिक एंथैल्पी थैलियम का 1.2877 है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है. डेंसिटी जो है थैलियम का वो है 11.85. और फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है थैलियम का वो है 576. और थैलियम का बॉइलिंग पॉइंट है 1730. Value of first ionization enthalpy of aluminium, silicon and phosphor are 577, 786 and 1012 kilojoule per mole respectively. Explain the observed trend. Solution. The trend show increasing first ionization enthalpy for aluminium to silicon to phosphor. जो एल्यूमिनियम से लेकर सिलिकॉन से लेकर फॉस्फोर तक पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है. एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोर बिलोंग टू 13 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोर जो है पीरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप पीरियड में रहता है. दे हैव सेम वैलेंस शेल. उनका वैलेंस शेल सेम है. ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आर मोर tightly held by the nucleus as we go from aluminium to silicon to phosphor. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के से अट्रैक्टेड होता है और वो एल्यूमिनियम से सिलिकॉन से फॉस्फोर तक जाता है. Therefore, more energy is required to remove an electron from outermost shell. तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से निकालने के लिए. Table 9.3. Enlist atomic physical property of element of carbon family group 14. तो ग्रुप 14 में जो कार्बन फैमिली है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक प्रॉपर्टी है. इन दिस ग्रुप ऑल 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट. इस ग्रुप में बहुत सारे ट्रेडिशनल टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है. कार्बन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन इज मेटलॉइड. कार्बन जो है नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड्स है. विच इज ब्रिटल लाइक नॉन मेटल. सिलिकॉन जो है नॉन मेटल है जो कांच के जैसा ब्रिटल है. इट इज़ हार्ड एंड हैज़ मेटालिक लस्टर. भले नॉन मेटल्स है लेकिन ये बहुत ही मजबूत है और मेटालिक लस्टर जैसा चमक दिखाता है. जर्मेनियम इज ऑल्सो ब्रिटल बट हार्ड एंड लस्टरस मेटलॉइड्स. जर्मेनियम भी ब्रिटल है लेकिन हार्ड और लस्टरस मेटलॉइड्स है. टिन और लेड डाउन द ग्रुप आर करोजन रेजिस्टेंट एंड मॉडरेटली रिएक्टिव. टिन या फिर लीड जो है ग्रुप को करोस्ट करता है, रेजिस्टेंट है और मॉडरेटली रिएक्टिव है. यहाँ पे एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, 32 है, जर्मेनियम 50 है, टिन और 82 है लीड. एटॉमिक मास कार्बन का 12.01 है, सिलिकॉन का 28.09 है, जर्मेनियम का 72.60 है, टिन का 118.71 है, लेड का 207.2 है. फिर कार्बन का एटॉमिक रेडियस 77 है, सिलिकॉन का 118 है, जर्मेनियम का 112 है, टिन का 140 है और लीड का 146 है. फिर यहाँ पे कार्बन का आयनिक रेडियस नहीं है तो सिलिकॉन का आयनिक रेडियस 40 पिकोमीटर है,
जर्मेनियम का आयनिक रेडियस 53 पिकोमीटर है। टिन का आयनिक रेडियस 69 पिकोमीटर है। लेड का आयनिक रेडियस 78 पिकोमीटर है। 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर कार्बन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1086 दिखाता है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2352 और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 4620। फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी 6220। सिलिकॉन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 786। सिलिकॉन का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 1577। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन का 3228। फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी 4354। जर्मेनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी 761 है। जर्मेनियम का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 1537 है। जर्मेनियम का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 3300 है। फोर्थ आयनाइजेशन 4400 है। टिन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 708 है। सेकेंड का आयनाइजेशन एंथैल्पी 1411 है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है टिन का 2942। फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी है 3929। लेड का आयनाइजेशन एंथैल्पी 715 है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेड का 1450 है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 3081। फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेड का 4082। फिर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है। जर्मेनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है। टिन का भी 1.8 है। लेड का 1.9 है। डेंसिटी जो है कार्बन का वो 3.51 है। सिलिकॉन का डेंसिटी 2.35 है। जर्मेनियम का 5.32 है। टिन का 7.26 है। लेड का 11.34 है। मेल्टिंग पॉइंट जो है कार्बन का वो है 4373 केल्विन। सिलिकॉन का 1693 केल्विन। जर्मेनियम का 1218 केल्विन। टिन का 505 केल्विन है। लेड का 600 केल्विन है। कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। सिलिकॉन का 3553 है। जर्मेनियम का 3123 केल्विन है। लेड का 2896 केल्विन है। लेड का 2024 केल्विन है। फिर यहाँ पर ग्रुप 15 में जो टेबल है वो क्या बताता है। ग्रुप 15 इज द नाइट्रोजन फैमिली। टेबल 9.4 शो द एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 जो है नाइट्रोजन फैमिली है। ग्रुप 15 में जो 9.4 टेबल है जो अभी आगे पढ़ने वाला है उसका फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टी दिखाता है। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड द 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट। इसमें 3 ट्रेडिशनल एलिमेंट्स भी है। द गैसियस नाइट्रोजन, ब्रिटल फॉस्फोरस और नॉन मेटल। गैसियस नाइट्रोजन और ब्रिटल फॉस्फोरस नॉन मेटल। आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड विद बिस्मथ इज मॉडरेटली रिएक्टिव। आर्सेनिक एंटीमनी जो है आर्सेनिक मेटलॉइड्स है। एंटीमनी जो है बिस्मथ है जो कुछ थोड़ा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। Some atomic and physical property of group 15 elements। तो एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। फॉस्फोर का एटॉमिक नंबर 15 है। आर्सेनिक का 33 है। एंटीमनी का 51 है। बिस्मथ का 83 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14.01 है। फॉस्फोर का 30.97 एटॉमिक मास है। आर्सेनिक का 74.92 मास है। एंटीमनी का 121.75 है। बिस्मथ का 208.98 है।
फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस 70 पिकोमीटर है, फॉस्फर का 110 पिकोमीटर है, आर्सेनिक का 121 पिकोमीटर है, एंटीमनी का 141 पिकोमीटर, बिस्मथ का 148 पिकोमीटर है। आयनिक रेडियस 171 पिकोमीटर है, फॉस्फर का 212 पिकोमीटर है, आर्सेनिक का 222 पिकोमीटर, एंटीमनी का 76 पिकोमीटर, बिस्मथ का 103 पिकोमीटर है। तो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट देखो ऊपर से लेके नीचे तक फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, सेकेंड में भी यही है, थर्ड में भी यही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है जैसे ग्रुप के नीचे जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 3.0, फॉस्फर का 2.1, आर्सेनिक का 2, एंटीमनी का 1.9, बिस्मथ का 1.9। यहाँ पे डेंसिटी जो है बढ़ता है, बिस्मथ का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते रहता है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़ते रहता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़ते रहता है।